غم ہی وہ لمحہ ہے جب انسان کو زندگی کی حقیقت نظر آتی ہے۔ ہر شخص زندگی میں ایک دفعہ غم کی اس سیڑھی پر ضرور چڑھتا ہے، اور تب اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ سانس چلنے سے لے کر اب تک جتنے بھی کام کیے ان میں ایک کام تو بھول ہی گئے، اللہ سے کتنا دور ہو گئے، زندگی کی تلخیوں میں کھو کر ایک اچھے دوست سے کتنا دور آ گئے ہم۔ اپنی دنیا میں جب کوئی چیز کھو جاتی ہے تو انسان اسے عرش میں ڈھونڈنے لگتا ہے، اور تب پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزوں کا کھو جانا کتنا بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ اللہ تم پر آنے والی ہر آزمائش تمہیں خود سے دور کرنے کے لیے تو نہیں لاتا، بلکہ سیدھے راستے سے بھٹک جانے کے بعد جو دوریاں اور فاصلے تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں، وہ رب دوبارہ سے تمہارے لیے ان بندگی کی راہوں کو استوار کرنے کے لیے تمہیں آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ رحیم ذات ہے جس کے غصے میں بھی ہمارے لیے پیار اور خیر خواہی چھپی ہوتی ہے، کاش کہ ہم سمجھنے والے بن جائیں۔ اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا آپ کو سزا دے رہا ہے۔ آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ کو سزا ہی دینی ہوتی تو وہ پھر آزمائش سے نکالتا بھی کیوں؟ ہاں، یہ بات سچ ہے، آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ آزمائش بظاہر تو ایک لفظ ہے، لیکن دراصل یہ رب سے جڑ جانے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائش آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ قیدی ان قریب رہائی پا جاتے ہیں، مریض شفا دے دیے جاتے ہیں، گمشدہ لوٹ آتے ہیں، غمگین خوش کر دیے جاتے ہیں، اور تکلیف اٹھا لی جاتی ہے، اور یہ کہ مومن کی آزمائش پوری کی پوری خیر کا باعث ہوتی ہے۔ بس اللہ کے ساتھ جڑی امید کو ناکام ہونے نہ دیں۔ جان لو آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، جتنی جلدی آزمائشوں سے مایوس ہونے کے بجائے رب سے لو لگا لی، اتنی جلدی آزمائش سے دست بردار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہو وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں تو جان لو وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ بہت مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے، ان چیزوں پر آزمایا جاتا ہے جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ بہت سے مشکلات آتی ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ تکلیف ہماری برداشت کی آخری حد ہے۔ ہم خود کو کمزور محسوس کرتے ہیں، جیسے کوئی راستہ نہیں بچا درد سے رہائی کا۔ ہم خود کو ہارتا محسوس کرتے ہیں، اندر ہی اندر ٹوٹا محسوس کرتے ہیں، اور تب احساس ہوتا ہے کہ ہم صرف صبر کر سکتے ہیں اور ہمارے بس میں نہیں، لیکن صبر کرنا تو ہمارے بس میں ہے۔ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ صرف صبر ہی ہے جو ہمیں بکھرنے سے بچا سکتا ہے،
हाँ, सब्र करना आसान नहीं होता, लेकिन जब हमें यकीन होता है कि सब्र करने से ही हम मुश्किल से निकल सकते हैं, तो सब्र हमारे लिए सुकून बन जाता है, हमारी ताकत बन जाता है। कितना खूबसूरत एहसास होता है। बहुत तकलीफ में भी जुबान पर एक ही बात होती है कि अल्लाह पाक है ना, सब ठीक हो जाएगा, और फिर सिर्फ सुकून रह जाता है। आजमाइश अल्लाह अज़ियत देने के लिए नहीं, कुछ सिखाने के लिए डालता है। जितनी जल्दी सीख लेंगे उतनी जल्दी वो दूर होगी। फरमाने गौसे आज़म है, अगर तेरे बदन का गोश्त कैंचियों से टुकड़े टुकड़े करके काटा जाए तब भी उर्फ़े शिकायत जुबान पर ना ला। शिकवा और शिकायत से अपने आप को बचा और महफूज रख और अल्लाह से डर। शिकायत से बच। लोगों पर तरह तरह की जो मुसीबतें नाजिल होती हैं वो अपने रब से शिकायत की वजह से आती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मैं किसी भी जान को उसकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता हूं, तो कैसे मुमकिन है कि तुम्हारी आजमाइश खत्म नहीं हो सकती। अगर एक आजमाइश के बाद दूसरी आजमाइश आ रही है तो जान लो अल्लाह तुम्हें मजीद अपने करीब करना चाहता है, तुम्हें अपनी मोहब्बत से नवाजना चाहता है। वो जब तक आजमाएगा जब तक तुम मुकम्मल उसकी मोहब्बत से सुरखरू नहीं हो जाते। तुम अपनी हर मुश्किल को आजमाइश क्यों समझते हो सकता है ये रुकावटें उसकी मसलियत हो। अल्लाह से हमेशा अच्छे गुमान रखा करें। आप अंबिया कराम की जिंदगी का मुतालिया करें तो जानेंगे जिन आजमाइशों से उन्हें गुजारा गया, हमारी तकालीफ तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं, वो साबिर थे। मुसलमान जब भी किसी परेशानी, बीमारी, रंजो मलाल, तकलीफ और गम में मुब्तला होता है, यहां तक कि अगर उसे कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह ताला उसे उसके गुनाहों का कुफ्फारा बना देता है। कभी कभी इंसान का दिल किसी चीज के लिए बहुत तड़पता है, इतना कि उसके लिए सब्र करना भी मुश्किल हो जाता है। इंसान हर रोज उस चीज को हासिल करने के लिए हर उस लम्हे दुआ करने की कोशिश करता है जो लम्हा दुआ के लिए अफजल है, और उसकी आंखें अपनी मांगी गई दुआ के कबूल होने के इंतजार में हर रोज इधर उधर तकती रहती हैं, और ये तो भूल ही जाती हैं कि अल्लाह ने हर चीज को अता करने का एक मखसूस और बेहतरीन वक्त मुकर्रर कर रखा है। हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमें किसी चीज को हासिल करने की इतनी चाहत है तो इस चाहत करने वाले दिल का मालिक कौन है? ये चाहत भी तो उसी रब ने दिल में डाली है ताकि तुम उसके लिए दुआ कर सको और वो तुम्हारी ख्वाहिश को बेहतरीन करके तुम्हें अता कर सके। और वो तो ख्वाहिश ही दिल में तब डालता है जब वो तुम्हारे नसीब में लिख देता है। दुआ तो बस हमारे ही दर्जात बुलंद करने का एक जरिया है। और हम तो तुम्हें अच्छे अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, और हम तो तुम्हें अच्छे और बुरे हालात से आजमा रहे हैं। अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है, तुम्हारे सब्र का इम्तिहान, दुआओं का इम्तिहान, तवक्कल का इम्तिहान, तुम्हारे इंतजार का, बर्दाश्त का इम्तिहान। और ये इम्तिहान सहना मुश्किल भी होता है। कभी कभी हम तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी दुआओं पर तवक्कल करना छोड़ देते हैं। दर्द सहना मुश्किल हो जाता है, तवील इंतजार दिल को थका देता है। मगर अल्लाह ताला का इम्तिहान तकलीफ देने के लिए नहीं होता। गौर करो तो पता चलेगा कि जब तुम इस इम्तिहान में नहीं थे तब तुम अल्लाह से इतना करीब नहीं थे जितना उस दर्द ने तुम्हें अल्लाह के मजीद करीब कर दिया है। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी दुआओं में खुलूस भर गया है, भरोसा आ गया है। ये इम्तिहान तुम्हारे दिलो दिमाग पर पड़ी दर्द की उस धुंध को आहिस्ता आहिस्ता मिटा देगा, और शायद ये रास्ता हो जो अल्लाह ने बनाया हो, तुम्हें अपनी तरफ
लेकर आने का। जब अल्लाह अपने बंदे को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है तो अपने बंदे को बार बार तोड़ता है, कभी उसकी नामुकम्मल ख्वाहिशात से, कभी मुआशरे की तलखियों से। इंसान इस कदर थक जाता है कि कहीं उसको सुकून मैसर नहीं आता, इधर उधर की भाग दौड़ से कुछ नहीं पाता, तो फिर वो मुकम्मल ज़ात जो हमेशा से हमेशा रहने वाली है उसकी तरफ रुजू करता है, जहाँ इस कदर सुकून मिलता है कि अपनी तमाम तर मुश्किलात भूल जाता है। फिर कोई ख्वाहिशात नामुकम्मल नहीं रहती। आहिस्ता आहिस्ता वक्त भी बिल्कुल ठीक चलने लगता है। फिर जब कभी इंसान हकीकी रास्ता भूलने लगता है तो अल्लाह फिर से इम्तिहान दिखाता है। फिर वो अल्लाह से मदद के लिए रुजू करता है। फिर वो ज़ात उसे आसानी फराहम करती है। इस तरह के कई इम्तिहान से गुजारती है, लेकिन उस ज़ात की मदद हमेशा साथ रहती है। इस मुश्किल घड़ी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आजिज़ी और इंकिसारी, दूसरों का एहसास, सबसे बढ़कर सब्र, क्योंकि कोई भी मुश्किल वक्त की जंग सब्र के बगैर नहीं जीती जा सकती। इसलिए मुश्किल से मुश्किल घड़ी में सब्र की चौखट पर रहिए। अच्छा वक्त नहीं रहा तो रहना बुरे वक्त में भी नहीं है। अल्लाह से मांगिए। आजमाइश तो उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह चाहता है, और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। आजमाइश एक तरह से आपको मजबूत करने के लिए भी आती है, जो कि बहुत जरूरी होता है। अल्लाह जानता है आप बहुत कमजोर हो, इसलिए उन्हीं चीजों के जरिए आजमाता है जो आपकी मनपसंद होती हैं। और यकीन करो, इसी आजमाइश से आप इतने मजबूत हो जाते हो कि कोई आपको कुछ भी बोल दे आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप खुद भी मजबूत हो जाते हो और अल्लाह से आपका रिश्ता भी मजबूत हो जाता है। फिर आप सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर बेफिक्र हो जाते हो।